ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے ایک تصویر جاری کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے، حیران کر دیا ہے، اور اس تصویر کے ریلیز ہو جانے کے بعد اسرائیل کی نیند اڑ گئی ہے۔ پینٹاگون میں بھی اس پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ آخر ایران یہ چاہ کیا رہا ہے، ایران کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کیا ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار یہ خبریں چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، ایران کی جو کمی تھی وہ کمی بھی دور ہو گئی ہے، اور ان سب پر ہم گفتگو کریں گے آگے۔ لیکن پہلے اس تصویر کو سمجھے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ اسرائیل کا نقشہ ہے جو مقبوضہ فلسطین ہے، اور اس نقشے کو ایران نے اس طرح بنایا ہے، تصویر کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے اسرائیل پر حملہ ہوا اور حملے میں پورا اسرائیل تباہ و برباد ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ ایران بار بار یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ چاہے تو اسرائیل کو نقشے سے مٹا دے، اسرائیل کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پچھلے دنوں جب میزائل سے ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو پوری دنیا نے ایران کی طاقت کو بھی دیکھ لیا، اور اگر امریکہ ساتھ نہ دے اسرائیل کا، امریکہ بیچ میں نہ آئے، تو سچ میں ایران اسرائیل کو نقشہ سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 3000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اسرائیل میں، ایران کے حملوں کی وجہ سے 100 سے زیادہ کی ہلاکت ہوئی اور کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ابھی جو تصویر سامنے آئی ہے اسرائیل کے نقشے کی، دراصل یہ بتاتا ہے، اور یہ جو ایسا ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب ایٹم بم سے کسی شہر پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ ایران نے بتایا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کی نیند حرام ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو تصویر ہے اس سے صاف دکھ رہا ہے کہ اسرائیل پر ایٹم بم سے حملہ ہوا، اور اس حملے کی وجہ سے پورا جو اسرائیل ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، سب کچھ وہاں مٹ چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور اس طرح کی فوٹو ایٹم بم سے حملے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس تصویر کے ذریعے ایران نے پیغام دیا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ اس کا جو ایٹم بم کا پروگرام تھا یا جو ایٹمی توانائی کا سلسلہ جاری تھا ایران کا، وہ ختم نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ کمی نہیں آئی ہے، اور آج بھی ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہے تو اسرائیل پر ایٹم بم گرا سکتا ہے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ پچھلے 12 دنوں میں یعنی 13 جون سے تقریباً 24 جون تک جو اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی چلتی رہی، تو وہ لڑائی اسی بات کی تھی کہ ایران نیوکلیئر توانائی کو حاصل نہ کر سکے۔ اسرائیل نے اچانک جا کر ایران پر حملہ کر دیا، اس کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کیا، ٹارگٹ کلنگ کی، اور جب پوری دنیا نے اسرائیل سے سوال پوچھا کہ تم نے اچانک ایران پر جا کر حملہ کر دیا، تم ہوتے کون ہو، تو اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سیلف ڈیفنس میں اٹیک کیا ہے۔ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے، نیوکلیئر توانائی حاصل کر رہا ہے، اور اگر ایران کے پاس یہ طاقت حاصل ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ایران ہم پر حملہ کر دے، اسرائیل کو اس سے نقصان ہو اور اسرائیل پریشانی میں چلا جائے۔ اس لیے اپنے بچاؤ میں، اور عربی میں اسی کو کہا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے طور پر، بہت پہلے سے اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے ایران پر حملہ کرنا ضروری تھا کہ ایران یہ طاقت ہی حاصل نہ کر سکے اور اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ دلیل دی اسرائیل نے اور ایران پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے حملوں سے ایران کا جب کچھ نقصان نہیں ہوا، ایران کے کسی بھی نیوکلیئر سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا، اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگی، 12 دنوں تک جنگ چلتی رہی، پھر امریکہ نے اپنے سب سے طاقتور جنگی جہاز سے ایران پر آ کر کے حملہ کیا، بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا جو زمین کی گہرائی میں 60 میٹر نیچے چلا جاتا ہے، اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کا نیوکلیئر جو پلان تھا ختم ہو چکا ہے، پروگرام ختم ہو چکا ہے، لیکن ایران نے پھر کہا کہ ہم نے یورینیم کو وہاں سے پہلے ہی دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، امریکہ کے حملے سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، صرف چند مہینہ پیچھے ہمارا پروگرام چلا گیا ہے اور ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد سیٹلائٹ کی امیجز اور تصویریں سامنے آئی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دوبارہ شروع ہو چکا ہے، وہاں گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھا جا رہا ہے، آمد و رفت کو دیکھا جا رہا ہے۔ پینٹاگون نے اپنی رپورٹ جاری کر کے کہا، CIA نے اپنی رپورٹ جاری کر کے کہا کہ ایران کا امریکہ کے حملے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ کی مشکلیں بڑھ گئی۔ ٹرمپ جو لگاتار کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے ایران کو سبق سکھا دیا، نقصان پہنچا دیا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو چکا ہے، اور ٹرمپ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس کے حملے میں ایران کا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اور اس تصویر کے ریلیز ہو جانے کے بعد تو ایران نے اسرائیل کو بتا دیا کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ابھی بھی جاری ہے اور ہم اسرائیل پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں لگاتار رپورٹ سامنے آئی کہ ایران نے اتنا یورینیم حاصل کر چکا ہے
कि ईरान उससे 5 से ज़्यादा एटम बम बना सकता है और इजराइल जैसे मुल्क को तबाह करने के लिए एक एटम बम भी काफ़ी है। जो लोग ईरान जा चुके हैं, ईरान के एक्सपर्ट से, दानिशवरान से मुलाकात कर चुके हैं, उन सब ने बातचीत में वाज़ेह तौर पर बता रखा है कि यकीनी तौर पर ईरान ये ताकत हासिल कर सकता है। ईरान के लिए बिल्कुल इजी है, लेकिन फ़िलहाल ईरान ने इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है। और यही वजह है कि अब लगातार ईरान के जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनकी तरह से बड़े अहम बयानात सामने आ रहे हैं। अब एक बयान ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र का सामने आया है, जिसमें यह कह रहे हैं कि यूरोप एक गैर महफूज खित्ता बन सकता है। मुमकिन है चंद दिनों में 5 ड्रोन किसी यूरोपीय शहर को निशाना बना दे। ये बहुत बड़ा बयान है कि सीधे सीधे यूरोप को धमकी दी है सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने और कहा यूरोप एक सेफ प्लेस अब नहीं रहा, वो गैर महफूज अनसेफ एरिया बन चुका है और चंद दिनों में 5 ड्रोन से किसी भी यूरोपीय मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। और आप समझिए कि यूरोप के जो ममालिक है वो नाटो के मेंबर हैं। यूरोप के जो ममालिक अपने आप को सबसे सुपर समझते हैं। अमेरिका और यूरोपियन ममालिक समझते हैं कि पूरी दुनिया उनकी गुलाम है, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत होगी। सोना निकलता है अफ्रीका के किसी मुल्क में, लेकिन सोने की कीमत क्या होगी, सोने का मालिक कौन होगा, ये तय अमेरिका और यूरोप के ममालिक करने लगे हैं। पेट्रोल निकलता है अरब देशों में और फैसला यूरोप और अमेरिका के ममालिक करते हैं। यूनाइटेड नेशन में यूरोप इन्हीं सब ममालिक के पास ज़्यादातर वेटो पावर, उसमें एक चीन आ गया है और रूस है, बकिया इन्हीं लोगों का कंट्रोल है पूरी दुनिया पर। लेकिन अब यूरोप के मुल्कों को धमकी दी है ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने। इससे पहले कतर में जहां अमेरिका का फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया जा चुका है। 2 दिन पहले भी सुप्रीम लीडर का इसी तरह का एक बयान सामने आया था कि अमेरिका का जो सबसे मजबूत फौजी अड्डा है उसको भी ईरान निशाना बना सकता है, ईरान उसको टारगेट करने की सलाहियत रखता है। तो लगातार ये लग रहा है जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। इधर चीन के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान फ्रांस से सामने आया और फ्रांस में चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर के कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके एक नई मिसाल कायम कर दी है और उसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे मुल्क पर जाकर हमला कर सकता है। दुनिया में कानून नहीं है, दस्तूर नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अमेरिका ने यह गलत रविश कायम की है जिसका खुमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो चीन का फ्रांस में जाकर के दिया गया जो बयान है वो सबसे अहम माना जा रहा है। और चीन पहले से ईरान के साथ पूरी तरह है, ईरान को चीन ने अपना मजबूत हथियार भी दे दिया है। एक और बयान अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है इनका सामने आया। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू हमारे खिलाफ फौजी मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, हमारी मिसाइलों ने सहयूनी हुकूमत के खुफिया मराकज़ को तबाह कर दिया। तो ये तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि 12 दिनों की जो जंग हुई थी 13 जून से 24 जून तक, उस जंग में इजराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका, अपने एजेंडा में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि उसमें ईरान की भी कुछ कमी सामने आई। जैसे ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल नाकाम नज़र आया। इसी तरह जो ईरान की एयर फोर्स थी वो अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकी। सिर्फ ईरान के मिसाइलों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और इजराइल को सख्त सबक सिखाया। उसके अलावा जो जासूसी का नेटवर्क के इजराइल का था वो ईरान में बहुत गहरा हो चुका था। अब कहा जा रहा है कि ईरान ने इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया है और ईरान जो आगे हमला करेगा पूरी क़ुव्वत के साथ हमला करेगा। चीन ने अपना C-10 फाइटर प्लेन भेज दिया है, उसके अलावा J-10 फाइटर प्लेन भेज दिया है, दूसरे हथियारों को भेजा है, एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने एक्टिव कर लिया है और अब ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है उसको दोबारा निशाना बनाया जा सकता है और यूरोप तक भी ईरान अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन को भेज सकता है। एक और खबर सामने आई कि चीन ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, कह लीजिए एक नया मिसाइल बनाया है जिस मिसाइल में ये ताकत है कि वो 12,000 किलोमीटर दूर तक पहुंच सके। तो 12,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल चीन ने बना लिया है। इतना लंबा तय करके वो वारहेड को ले जा सकता है और इतने फासले पर सिर्फ दुनिया में अमेरिका है, कोई और मुल्क नहीं है। तो मतलब साफ है कि जो ममालिक हैं चीन और रूस या कह लीजिए ईरान, ये लोग अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग लड़ने की भी सलाहियत रख रहे हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान भी लगातार नोक झोंक चल रही है। अमेरिका लगातार रूस के सदर पर दबाव बना रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला ना करे, जंग बंदी हो जाए और व्लादिमीर पुतिन ने
अमरीकी सदर की बातों को मानने से साफ लफ्ज़ों में इनकार कर रखा है। ट्रंप ने एक और ट्वीट करके कहा कि रात में मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूं तो बंदा मीठी मीठी बात करता है। मुझे लगता है कि जंगबंदी हो जाएगी, यूक्रेन पर हमला बंद हो जाएगा, दुनिया में अमन की शुरुआत हो जाएगी और कल सुबह होकर के दोबारा वो यूक्रेन पर जाकर के बम गिरा देता है। इधर इसके बाद अमरीकी सदर ने एक और बयान जारी किया कि अब यूक्रेन को हम हथियार देंगे, नाटो के जो ममालिक है वो यूक्रेन को हथियार देंगे। तो रूस अमेरिका के सामने झुकने से लगातार इनकार कर रहा है। रूस ने उसको औकात बता दी है, इधर ईरान ने औकात बता दी अमेरिका को, और यही वजह है कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो दुनिया में ख़राब होती जा रही है। कुछ और खबरें हैं जिसका आगे तस्करा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाइए। इन दिनों जितने मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़ पोर्टल है, उन सब लोगों ने अपने व्यूवर और सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन लेना शुरू किया है, उनसे पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। मिल्लत टाइम्स आपका अपना मीडिया हाउस है, आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से मिल्लत टाइम्स आगे बढ़ा है और अब हमने तय किया है कि मिल्लत टाइम्स को और मजबूत बनाने के लिए, मिल्लत टाइम्स को ताकतवर बनाने के लिए हम 10,000 अपने मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स बनाएं। मिल्लत टाइम्स के ऐसे सब्सक्राइबर यूट्यूब पर 17 लाख से ज़्यादा है, फेसबुक पर कई लाख फॉलोवर्स हैं। हुकूमत ने हमारे एक फेसबुक पेज पर पाबंदी लगा रखी है जिसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। उसके अलावा हमारी टीम पर कई सारे केसेस हैं, कई सारी FIR है। उसके बावजूद लगातार हम काम कर रहे हैं और ये काम हम आपके सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। तो 4-5 मिलियन फॉलोवर और सब्सक्राइबर में से हम चाहते हैं कि सिर्फ 10,000 हमारे ऐसे लोग हों जो हर महीने 99 रुपया दे करके हमारे मेंबर बन जाए। और मेंबरशिप लेना, सब्सक्राइबर बनना निहायत ईजी है। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक करेंगे या इसके ज़रिए जाएंगे तो आपको आपके मोबाइल पर ये पेज खुल करके सामने आएगा। ऊपर 99 रुपये लिखा हुआ है, फिर 500 और उसके अलावा दूसरा मेंबरशिप प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 99 रुपये का जो मंथली मेंबरशिप प्लान है आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ सब्सक्राइब नाउ पर आकर के क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, नाम डालना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे फिर ये पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ UPI ID पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर जो आपके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यानी UPI से लिंक है। और जैसे यहाँ मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसके बाद पे नाउ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल करके सामने आ जाएगा और इसके ऊपर ये आ जाएगा नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे ये खुल करके सामने आ जाएगा। अप्रूव ऑटो पे पर क्लिक करना है, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड पर, या पेटीएम है तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मिल्लत टाइम्स का आपसे ख़ास रिश्ता हो जाएगा। आप सिर्फ हमारे आम सब्सक्राइबर नहीं बल्कि ख़ास स्पेशल सब्सक्राइबर और मेंबर रहेंगे। आप फ़ख्र करेंगे अपने आप पर कि कम से कम आप मिल्लत के एक न्यूज़ पोर्टल को 100 रुपया या 99 रुपया हर महीना दे करके सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको दिल से खुशी मिलेगी। आप 99 रुपये, 200 रुपये दे करके नेटफ्लिक्स की कभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कभी कुछ और चीज़ें देखते हैं, तो कम से कम मिल्लत टाइम्स को ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से कहिए कि वो भी सब्सक्राइबर बन जाएं, वो भी अपने मोबाइल से इसी तरह करके सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि मिल्लत टाइम्स आगे बढ़े, मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ें और मिल्लत टाइम्स के साथ आपका ख़ास रिश्ता रहे। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। फ़िलहाल आप हमारे सब्सक्राइबर और मेम्बर बनिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से शेयर कीजिए।